Hello everyone. My name is Reena, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 3rd, and in this lecture we will discuss our poem The Soldier written by Rupert Brooke. This is the video second regarding this poem. Previous in video first we will discuss this poem and the explanation of this poem is English to English. And on your request, dear students, here in this our video number 2 and video number 3rd, we will discuss this poem with its line to line explanation and in Hindi and in English also. Okay, so on behalf of your request, because most of our students are bilingual and they asked that ma'am it is may be difficult to understand English to English, so please you may provide the Hindi translation of this poem also. So dear students, in our today's e-lecture we will discuss this poem in Hindi also. So let's have enjoy this poem, The Soldier, written by Rupert Brooke. As previous we have discussed that I have sent the handwritten PDF of this poem, introduction to the poet with introduction to the poem, and after that its explanation as line by line. As we have seen that this poem is sonnet in sonnet form. So we divided this poem in octave part and sestet part as previous we have discussed in our first video. So in this second video we will discuss its octave part, and in our third video we will have the sestet part of this sonnet. Okay, so let's start our today's poem The Soldier, written by Rupert Brooke. So first of all, you see on your screen handwritten PDF, and I hope all of you noted it down in your copy also. So along with your notes, be with me in our e-lecture, and the first point is introduction to the poet. Rupert Brooke was son of the house master at Rugby. रूपर्ट ब्रूक जो है वो रग्बी के हाउस मास्टर हैं, उनके बेटे थे. वेयर ही हैड हिज स्कूलिंग, और रग्बी में ही इनकी स्कूलिंग हुई. ही हैड ज्वाइंड द रॉयल नेवी, सो ही वाज कंसीडर्ड एज ए वॉर पोएट. और इन्होंने जो है रॉयल नेवी ज्वाइन की थी और इसलिए इनको वॉर पोएट कहा जाता है. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो वार पोएट कहलाते हैं. एंड ही डाइड अप्रैल 23 1915, और 1914 1914 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की. एंड बहुत यंग एज में 1915 में ही इनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, हिज सर्विस. इनकी सर्विस पे ये किसी सैनिक एक्सपेडिशन पे थे ग्रीक आइलैंड स्काइरोस में, और वहां पे इनको सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद इनकी वहीं ऑन ड्यूटी ही मृत्यु हो गई. तो ये समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. तब एक तरीके से रूपर्ट ब्रूक की जो पोएम है, जो पोएट्री है, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी पूरे इंग्लिश पीपल के लिए. सो यहाँ पे अगर इस पोएम का बैकग्राउंड हम डिस्कस करें तो इसका बैकग्राउंड है 1914-1915 मीन्स द जो पूरा एटमॉस्फेयर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो. सो ही डाइड इन अप्रैल 23 1915 ऑफ अ सेप्टिक इन्फेक्शन ऑफ लिप. अपने होठ पे एक सेप्टिक इन्फेक्शन होने के कारण इनकी मृत्यु हुई. व्हेन ही वाज ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ स्काइरोस, जब वो स्काइरोस नामक ग्रीक आइलैंड पे थे. एंड ही वाज बरीड एट आइलैंड ऑफ स्काइरोस, और उनको वहीं
स्काई रोस आइलैंड पे ही दफना दिया गया था। सिचुएशन ऐसी रही होगी कि उनको वापस लाना इम्पॉसिबल हुआ हो तो उनको वहीं दफना दिया गया। एंड हिज पोएम अपीयर्ड इन 1911 एंड 1914 एंड द अदर पोएम्स इन 1915। और इनकी जो कविताएं हैं और मोस्टली 1911, फिर उसके बाद 1914, देन 1915 में आई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू दी पोएम। हमारी पोएम जैसा नाम है द सोल्जर और ये सोनेट फॉर्म में है, तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन इस सोनेट का यहाँ पे देखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इंट्रोडक्शन टू दी पोएम एंड also you can write introduction to the sonnet. So let's start. The poem entitled The Soldier is a sonnet. मीन्स ये पोएम एक सोनेट है, सोनेट फॉर्म है। एंड दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, और ये सोनेट जो है वो फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म से है, मीन्स एक देशभक्ति की भावना से भरा हुआ। और ये ग्रीक मीन्स इटालियन बेस्ड सोनेट है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑक्टेव पार्ट और sestet part. Octet part of 8-line explanation and sestet part of 6-line explanation, a 6-line extract. Okay. And the poet belongs to England, so he says a man who dies for England is buried wherever, that is sport is forever a part of England. Means पोएट इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी आदमी जो मरता है और इंग्लैंड के लिए मरता है और उसको कहीं भी वेरेवर मतलब कहीं भी उसको दफना दिया जाए, लेकिन जहां भी दफनाया जाएगा, जहां मरेगा, जहां दफनाया जाएगा, वो स्थान क्या होगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ही एक भाग हो जाएगा। एंड द सेम आइडिया इज रिप्रेजेंटेड इन द सोनेट अगेन एंड अगेन। और यही आइडिया कौन सा, द डीप फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। ये जो डीप फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म हमने देखी कि किस तरीके से पोएट यहाँ पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इंग्लैंड के लिए अपनी जान दे रहा है, इंग्लैंड मीन्स फॉर हिज ओन कंट्री, चाहे वो इंग्लैंड का हो या कहीं का भी हो, हर सोल्जर के लिए, हर रियल देशभक्त के लिए यही है कि वो कहीं भी मरेगा तो वो स्थान जहां उसको दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए उसके कंट्री का एक पार्ट बन जाएगा। और ये सेम आइडिया जो है ये बार बार इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा। Thus, the sonnet expressed an English soldier's patriotism and his fervent love for his country. और ये सोल्जर का एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म जो है वो दर्शाता है। एंड एज वी नो रूपर्ट ब्रूक वाज बरीड इन अ फॉरेन लैंड ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ स्काइरोस। जैसा हम जानते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक ग्रीक आइलैंड पे बरीड किए गए हैं, स्काइरोस पे, बट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ हिज कंट्री, लेकिन वो खुद को अपनी कंट्री का ही भाग मानते हैं। चाहे वो कहीं फॉरेन लैंड्स में भी उनको दफनाया जाए, लेकिन वो क्या मानते हैं, एज एन पार्ट ऑफ हिज ओन कंट्री। सो wherever he is buried, इसलिए उनको कहीं भी दफनाया जाए, that place would become England's forever, तो वो जो जगह है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी, because he is इंग्लैंड डस्ट, क्योंकि वो इंग्लैंड की डस्ट है, इंग्लैंड की मिट्टी से ही बने हुए हैं। एंड हिज बॉडी इज रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उनकी बॉडी आफ्टर डेथ, इवन आफ्टर डेथ हिज डेड बॉडी ऑल्सो इज अ रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड। उनकी डेड बॉडी भी जो है वो रिचर डस्ट है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड की सोइल से ही वो बने हैं। Thus, the sonnet is the finest example of patriotism, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोनेट जो है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रियोटिज्म का। जैसा ये ऑक्टिव पार्ट है हमारे सोनेट का, हमने वीडियो फर्स्ट में भी इसको बहुत अच्छे पीपीटी के जरिए इसको समझा है। यहाँ पे मैंने हैंड रिटन पीडीएफ जो आपको दिया है उसमें भी मैंने ये लाइंस मेंशन किए हैं, तो आप एक बार फिर से इनको पढ़ सकते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस मी दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, मीन्स यदि मेरी मृत्यु होती है और किसी फॉरेन फील्ड पे भी मुझे दफनाया जाता है, दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड एंड देयर शैल बी in that rich earth a richer dust concealed, और
वो हमेशा के लिए वो फॉरेन लैंड भी इंग्लैंड का ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो रिचर्ड डस्ट मीन्स रिचर्ड डस्ट यानी आफ्टर डेथ जो मेरी डेड बॉडी है वो उस जगह में मिल जाएगी, और मेरा जो शरीर है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, तो जहां भी मुझे दफनाया जाएगा वहां की मिट्टी भी इंग्लैंड की ही हो जाएगी। दिस इज टू मच deep, too much feeling of patriotism as we see in the poem The Soldier, written by Rupert Brooke. And the next fourth line of octave part is a dust who England bore shaped made away, means वो डस्ट, कौन सी डस्ट, जिससे कि मेरा शरीर बना हुआ है, वो यहाँ डस्ट किसके लिए आया है, डेड बॉडी ऑफ दी पोएट, पोएट की डेड बॉडी के लिए, उसकी बॉडी के लिए, कि वो जो है इंग्लैंड में ही पैदा हुआ है, वहीं उसको शेप मिला, वहीं पे ही पला बड़ा, एंड गेव वंस हर फ्लावर्स, हर मतलब इंग्लैंड के लिए ही हर यहाँ पे आया है कि वहां के फ्लावर्स को ही मैंने प्यार किया है। हर वेज टू रोम, मैं इंग्लैंड में ही घूमा फिरा हूँ, वहीं पे ही बड़ा हुआ हूँ, एंड अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और वहां की इंग्लिश हवाओं में ही मैंने सांस लिया है, एंड वॉश्ड बाय रिवर्स, वहां की नदियों में ही मैं नहाया हूँ, वहां की नदियों का पानी ही मैंने पिया है, एंड ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वहां के ही जो सूरज की रोशनी में मैं घूमा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, मीन्स कंप्लीटली आई एम द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, ये यहाँ पे कहना चाहता है। और मरने के बाद भी मेरी जो डस्ट है, मेरी डेड बॉडी है, वो चूंकि इंग्लैंड की डस्ट से बनी हुई है, इंग्लैंड की सोइल से बनी हुई है, तो जहां भी मैं मरूंगा वो स्थान भी हमेशा के लिए मेरा ही जो पार्ट है, इंग्लैंड का ही पार्ट है, वो हो जाएगा। तो अगर ये लाइन आती है हमारे एग्जामिनेशन में, तो हम इस तरीके से इनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं, अगर ये लाइन्स हमें वहां मिलती हैं इनमें से कुछ भी। तो सबसे पहला जैसा हम लिखते हैं, जब हमें एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आता है हमारे 20 मार्क्स का, अगर वहां हमें ये लाइंस नजर आती हैं तो सोल्जर पोएम की, तो हम इस तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहला जैसा हम लिखते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, दीज लाइंस आर एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एंटाइटल्ड, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने एक्सट्रैक्ट लिखा है, आप इसका सेकंड फॉर्म कर लीजिए, एक्सट्रैक्टेड। ओके, these lines are an extracted from the poem entitled The Soldier, written by Rupert Brooke. This sonnet expresses an English soldier's patriotism and his fervent means deep love for his country. तो इस तरीके से आप इस पोएम का रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर ये लाइंस कहीं भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्टेव पार्ट इज the sonnet shows the spirit of intense patriotism of the poet. Intense patriotism is बहुत, intense means क्या होता है, बहुत गहरी, बहुत गहन देशभक्ति की भावना यहाँ पे हमें दिखाई देती है रूपर्ट ब्रूक की। The poem beautifully expresses an English soldier's deepest sentiment of love for his motherland. Deepest sentiment means बहुत deep feeling जो है वो अपने लव फॉर हिज मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति जो बहुत गहरा प्रेम है, उसकी भावना हमें यहाँ नजर आती है। एक सैनिक का अपने मातृभूमि के प्रति जो गहरा प्रेम है, वो भावना हमें नजर आती है। एंड दिस सोनेट इज अ सिंसियर अपील दैट एवरीवन शुड लव देयर मदरलैंड। और यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक अपने इस पोएम के जरिए एक सिंसियर अपील कर रहा है कि सबको अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। एंड दिस sonnet is written during the First World War. So it is inspired by the First World War. And Rupert Brooke was a soldier. Rupert Brooke खुद एक सोल्जर थे और ये लिखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंस्पायर्ड सोनेट है। एंड ही वाज फुल ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग, और रूपर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर पोएट है, इसलिए वो बहुत ही देशभक्ति की भावनाओं से भरे हुए हैं। एंड इन द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट, अब एक्सप्लेनेशन आया हमारे ऑक्टेव पार्ट का। The poet says he is a part of England. Poet क्या कहता है कि वो इंग्लैंड का ही एक पार्ट है। And if he dies in a foreign lands, यदि वो किसी विदेशी
विदेशी जगह पे भी मर जाता है तो दैट प्लेस वुड बी ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉरएवर। तो वो पार्ट जो है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हिज बॉडी, क्योंकि उसका शरीर, हिज माइंड एंड स्पिरिट, उसकी दिल दिमाग, उसकी आत्मा, उसका शरीर, सब कुछ क्या है? आर मेड ऑफ इंग्लिश सोइल। सब कुछ इंग्लिश सोइल से बना हुआ है। इंग्लिश सोइल, इंग्लिश क्लाइमेट एंड थॉट्स, मीन्स इन सब चीजों से मिलकर ही बना है। सो ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड ही इज मेड ऑफ इंग्लैंड्स डस्ट, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही पैदा हुआ है, इंग्लैंड की डस्ट से ही बना है। ही वाज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में ही बड़ा हुआ है। एंड ही वाज ब्रॉट अप विद द इंग्लिश इंग्लैंड्स लविंग फ्लावर्स, और वो कैसे बड़ा हुआ है? वहां के फूलों से प्रेम करता हुआ, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वहां की इंग्लिश एयर में ही, हवा में ही सांस लेता हुआ, वहां के ड्रिंकिंग वाटर्स ऑफ इंग्लिश रिवर्स, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड की नदियों का ही पानी पीते हुए बड़ा हुआ है। एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ इन द इंग्लिश सनशाइन, और इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड के सनशाइन में ही वो एंजॉयमेंट करता हुआ बड़ा हुआ है। मीन्स कंप्लीटली ही इज अ पार्ट ऑफ his own country England. So he thinks, means he considers his dust means his own dead body, उसका शरीर जो है वो richer, वो अच्छा है than the land of where he may die. वो जहां भी मरेगा वहां की डस्ट से बेहतर उसके शरीर की डस्ट है। सो वो क्या कहता है? Thus he shows his extreme patriotism towards his motherland. और यहाँ पे अपने मातृभूमि के प्रति उसका बहुत एक्सट्रीम जो है लव वो हमें देखने को मिलता है। So the poet says he is dust of England and wherever he is buried that place would become the part of England forever. और नेक्स्ट जो है पोएट ये बताते हैं कि रूपर्ट ब्रूक की जहां भी मैं मरता हूँ, जहां भी मुझे बरीड किया जाता है, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट एंड हियर वी हैव डिस्कस्ड द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट in line to line in English and Hindi also. And I hope all of you understood very well. Isn't it? Yes, I think आप सबको बहुत अच्छी तरह से अब ऑक्टेव पार्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी सेंटेंसेस में मैंने इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। आप सब भी लिख के रखें और बार बार पढ़ें, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। इससे भी बहुत अच्छी लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, सो दैट each and every student would be understood much better. So and last the critical note means octave part में हमें क्या critical note नजर आता है? कुछ ऐसी चीज जैसे ब्रूक हैड जॉइन द ब्रिटिश नेवी 1940, ये हम लिख सकते हैं 1914 में इन्होंने ब्रिटिश नेवी ज्वाइन की। एंड ही डाइड ऑन एक्टिव सर्विस एट स्काइरोस, और स्काइरोस पे उनका एक्टिव सर्विस के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई 1915 में। And the opening three lines of the poem make Rupert Brooke immortal forever. जो opening three line है, opening three line if I should die जो है हमने अभी पढ़ी, वो तीनों लाइन जो है रूपर्ट ब्रूक को immortal कर देती है forever के लिए। And he became the inspiration to all countrymen of England. और इस तरह से रूपर्ट ब्रूक जो है वो सब इंग्लैंड के कंट्रीमैन के लिए पूरी तरह से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं। सिर्फ इंग्लैंड के ही पीपल के लिए नहीं कि रूपर्ट ब्रूक इस पोएम को जो भी पढ़ेगा, चाहे किसी भी कंट्री का हो, तो निश्चित रूप से उसमें फीलिंग डेवलपमेंट होगी टुवर्ड्स means the feeling of patriotism towards his own motherland. अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से एक सैनिक है वो अपने मातृभूमि के लिए कुर्बान हो रहा है, तो किस तरह से वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है टू द कंट्रीमैन ऑफ हिज ओन कंट्री, not only his own country but for the people of around the all over world. So this is Rupert Brooke's appeal that we should love to our own motherland. Dear students, ये हमारा आज का e-lecture और इसमें हमने octave part discuss किया, and next in our video third we will discuss the Sanskrit part of this poem. तो आगे की 6 लाइन के लिए हम हमारी अगली वीडियो जो वीडियो थर्ड है इस पोएम की The Soldier उसमें पढ़ेंगे। So till then, have a nice day, enjoy your studies and be with me in our next videos.